We are starting again this Fermat theorem. Little theorem, right? In this little theorem, what we have to do, right? Already we have studied that a to the power p minus 1 congruence to 1 mod p. This is very important formula given by फर्मा के पहले भी दिया था, काफ़ी हम लोगों ने स्टोरीज की सुनी भी थी लास्ट क्लास में. और यू कैन राइट a to the power is congruence to a mod p, right? In this GCD or HCF of AP is 1, right? Don't have any factor. Don't have any factor that's common to both. So GCD of A and P must be right. तो एक तरीका हम लोगों ने देखा था इंडक्शन के मेथड लास्ट क्लास में. सेकंड हम लोगों ने इसी प्रूविंग को राइट सेकंड जो मेथड है दैट वी आर गोइंग टू डू that's known as inverse. This proof is very important and very useful. So everyone carefully you have to go through this, right? First I'm going through the statement and all, right? Let S be the set that contain the element 1, 2, 3, 4 up to p minus 1. Then we claim that the set A into S consisting of the product of the element of S with A taken modulo P is simply a permutation of S, right? In other word, S congruence to 1 into A, 2 into A, up to P minus 1 into A mod P, right? Please note down everyone. मैं भी explain करूँगा how to go for this, what is the meaning of this. We have already did this in inverse property. If you have remember, हम लोगों ने एक पूरा चार्ट बनाया था. चार्ट में हमने देखा था कि exactly mod p के लिए how this will work. लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वर्क किया था, बट एक बार फिर से I'll go for this, right? So everyone careful. If you have noted down, write down here in chat. So just wait a minute. Just I'll go through this, then I'll take your question. Na? Just wait for a few minutes. Na? Sujal.
Now, what is the meaning of this, right? Now, what it's saying that if I'm saying that the number is S, the set, the number is going on 1, 2, 3, 4, 5, 6, means mod 7 की बात कर रहा हूँ, right? If I'm multiplying the number, right? Multiplying the number, let's suppose any number 5 I'm multiplying with this. If I'm multiplying the number 5 with the set, so I'm getting 5, second is 10, third is 15, 20, 25 and 30, right? This it's a into, as it is given, a into 1, a into 2 up to a into p minus 1. But the same thing I'm doing with 5. I'm taking a is equal to 5 and this p is 7 here in this case, right? If I'll multiply this, now I have to take this as modulo 7. 7 से divide करने पर I have to see what the numbers are coming. If you remember, that's called the inverse property. हर एक number का एक inverse होता है if it's going greater, right? For 5 के लिए the number will be still 5 because this is less than 7. For 10, this will be number 3, right? For 15, 7 to the 14, 115, right? This 27 to the 14 plus 6, this 7 3s are 21 plus 4 and 28 and 1. If you'll see this number, the permutation, the arrangement, the number 5 is there, the number 5 was there, right? The number 3 is there, number 3 was there, right? Number 1 is there, right? Number 1, right? Number 6, obviously number 6. So the arrangement of the number is changing, but still complete number set you are getting, complete number set we are getting from the set, right? So what this concept is saying, if you multiply any number, right? If you're multiplying any number with the permutation of p minus 1, so still the inverse property says that the arrangement will be changed, but still you'll get the same numbers as it was given with modulo, right? This is known as the inverse property. याद है ना वो चार्ट बना के भी मैंने पूरा का पूरा दिखाया था. So every time we are getting the arrangement, the rearrangement, the number will be same, right? So what statement is saying? अब mathematical statement पे आता हूँ. ये तो conceptual मैंने कहा, तो I guess everyone is getting this. Write down yes in chat if you are getting this. If not getting, write down no in chat. Understood. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. That's it. That's it. Okay. Okay. Stop. Right. So we can say that AI, but mathematically this is very simple, right? I into A. I is the number 1, 2, 3, 4 up to p minus 1. For I lies between 1 to p minus 1 are not divisible by p, right? So none of the number AI, right? If A is not divisible, then AI is divisible by p, right? अब कोई भी दो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ये कंफर्म है, राइट? एक चीज, ये फर्स्ट थ्योरी रही. देखना ध्यान से कितना प्यारा तरीका होता है मैथमेटिकल प्रूफ का, राइट? सेकंड चीज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि A into S are distinct, right? A into S are distinct, मतलब जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ लिख के रखे हुए हैं, A into ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सब के सब डिस्टिंक्ट होंगे, राइट?
अगर मैं ये प्रूव कर पाया यहाँ कि ये जितने एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं ये सब के सब डिस्टिंक्ट होंगे, राइट, एक चीज मैं ये प्रूव कर ले रहा हूँ। और दूसरी बात हमने ये प्रूव कर लिया कि पूरे के पूरे एन आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि अलग अलग परमुटेशन के साथ में एवरी टाइम I'll get the same thing, right? So A into S are distinct. ये मेरी प्रूविंग पॉइंट है यहाँ पर, मतलब जो मुझे प्रूव करना है वो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अब इसे प्रूव करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट? तो सपोज यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह से, वो देखिए। सपोज दैट लाइक वी आर लेटिंग दिस I into A is equal to this congruence to J into A mod P, right? Since GCD of A and P is 1, right? So by the cancellation of this, I know that I must be congruent to J mod P. But all this Ij is lying between 1 to P minus 1. So if all are lying between 1 to P minus 1 and I is congruent to J, ये आगे नहीं जा रहा है नंबर, this is possible only if I is equal to J, but I is not equal to J. मैं दो नंबर तो अलग अलग लिया था यहाँ पे, राइट? मतलब ऐसा कोई भी नंबर मेरे पास पॉसिबल नहीं होगा A इंटू एस में जो दो एक दूसरे को राइट, दो एक दूसरे के साथ में, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट वे। तो अगर मैंने ये दो चीजें प्रूव कर ली कि पूरे के पूरे नंबर्स भी हैं एंड ऑब्वियसली बात है सब डिस्टिंक्ट हैं, तो अब जो हमारे पास जो फंडामेंटल था वो जो था, इसमें हमने ये बोला था कि एस जो मेरे पास है, द सेट इज 1 2 3 अप टू p minus 1 एंड इफ a इज नॉट डिवाइड a and p का GCD इज 1, right? A and P का GCD is 1, so S is congruent to A, 2A, 3A up to AP minus 1. ये जो मेरे पास कॉन्ग्रेंसी आ रही है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो भी नंबर आ रहा होगा विद अ डिफरेंट परमुटेशन, ए वाला किसी यहाँ पर दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट? बी वाला किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हर एक नंबर किसी ना किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ए किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? यहाँ से 3A किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट? 4A किसी और को रिप्रेजेंट कर, मतलब हर एक नंबर मैचिंग तो होगा बट डिफरेंट वे में दे ऑल विल मैच ईच अदर, राइट? ओके, सो अब ये दो चीजें मेरे पास आ गई कि ये कहीं ना कहीं जितने भी नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे नंबर्स, और ये हमारे पास वर्किंग हो गई ये पूरे की। सो प्लीज गो थ्रू दिस। आई गेस कुछ लोग नोट कर पाए, नहीं है शायद, मेरे को मैसेज जैसा आ रहा है। सो प्लीज गो थ्रू दिस। यहाँ से आई गेस मैंने आगे लिया था, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक यू कैन आस्क योर डाउट्स आल्सो। Yes, Sujal, you wanted to ask something. क्लियर हो गया बेटा? Yes, Aman. Yes, Aman. हमने assume किया ना सर कि a dot y मतलब a into I is not divisible by p. A into y is not obviously I मैंने 1 से p minus 1 के बीच लिया है, a और p का GCD 1 है, तो a भी डिविजिबल नहीं है, I डिविजिबल है नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्यों डिविजिबल होगा? यस आदि।
सर वो आपने फर्स्ट पार्ट लिखा है ना पर्पल में, वो नहीं समझा सर। पर्पल में कौन? ए इज इक्वल टू 5? नहीं सर, आई फॉर आई अच्छा, बिटवीन 1 and t-1। अभी आता हूँ बेटा, फिर से आता हूँ। वो पार्ट थोड़ा अच्छा पार्ट है, अगर वो आप यूज कर पाते हो इट्स ब्यूटीफुल। मतलब कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन काम कर जाता है जहां पर ऑब्वियसली, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल वन। सी व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक P7, समझना बात को ना, P7 राइट। अब मैं लिख के दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा राइट। नंबर से लेके दिखाने पर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम सेइंग P7, तो S में जो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, द नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 राइट। सो मॉड P से डिवाइड करें, P का मतलब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 7 राइट। तो मैंने P के लिए कोई भी नंबर अपने पास लिया है, तो मॉड 7 के लिए आई एम सेइंग कि दिस विल बी डिविजिबल। तो डिवाइड करने पर जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो रहा राइट। लेट्स सपोज आई एम सेइंग इन दिस केस राइट कि A इज इक्वल टू 5 राइट। A इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं एक नया S ले रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं वो कॉन्ग्रेंस होगा 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 6। मॉड 7 से आपको वही नंबर्स मिलेंगे जो नंबर्स पहले मिल गए, ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर A की वैल्यू 5 है, जस्ट अ मिनट, if value of A is 5 and I lies between 1 to 6 right, ये बोल रहा है I into A। जो यहाँ नंबर्स मैंने लिख के रखे हुए हैं इनमें से कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। this IA for I this for not divisible by P, so none of the number IA is divisible by P। क्या नया बात बोला? राइट, लुक इनटू दिस। ये जो मेरे पास यहाँ पर है, मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर्स जो मेरे पास गिवन हैं, ये नंबर में कोई भी मेरा नंबर डिविजिबल नहीं है राइट। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मैं मॉड 7 के अंडर में जितने रेसिड्यू हैं, दिस इज कॉल्ड द रेसिड्यू, उस रेसिड्यू की बात कर रहा हूँ। एंड मैं अगर 5 नंबर लेके फिर इस पूरे को मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ इनमें से भी कोई नंबर नहीं होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। Adi, is it okay? Perfectly. Yes, right? यस सर। This is the first point, right? कि अगर 1 2 3 4 5 6 डिविजिबल नहीं है, 5 भी डिविजिबल नहीं है, तो दोनों का मल्टीपल भी कभी डिविजिबल नहीं होगा। दैट्स सेइंग इन द फर्स्ट वन, राइट। सेकंड में क्या बोल रहा है कि अगर मैंने A into X से मैंने बहुत सारे ये नंबर्स बना लिए, तो A into S से बना हुआ जितना भी नंबर होगा मॉड 7 के बाद में, राइट, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मॉड 7 के बाद में ये नंबर फिर से आपको वही नंबर जो पहले 1 2 3 4 5 6 था, यही में से एक ना एक नंबर आएगा। मे बी उसके परम्यूटेशन जो है वो हमेशा चेंज होते जाएंगे। परम्यूटेशन मतलब 5 into 1 यहाँ नहीं आके 5 into 1 यहाँ चला गया, राइट। फाइव इंटू 1 वहां चला गया है। उसी तरह से 5 into 2 जो मेरे पास है वो 5 into 2 मेरे पास ऑब्वियसली बात है 10 हो गया। 10 को डिवाइड किया तो वो यहाँ चला गया, राइट। उसके बाद राइट 5 into 3 15 जो है वो कहीं और चला गया है, राइट। उसके बाद राइट 5 into 4 20 है, राइट, वो कहीं और चला गया है, राइट। 5 into 4 है वो राइट
एंड सिमिलर जो एक बचा वहां जाना है, राइट। तो ये नंबर के अरेंजमेंट में परमुटेशन में चेंजेस आ गए हैं, बट स्टिल द नंबर विल बी सेम, राइट। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। राइट डाउन यस। अगर दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है तो मेरे को आगे स्टार्ट करने में, आगे इस फर्मा थ्योरम प्रूफ करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। I guess very good everyone, right। मैं कैसे नोट भी कर लिए होंगे। मीन्स अब मतलब इससे हमारे पास क्या आ गया, राइट। इन दोनों फंडामेंटल से मेरे को क्या मिल गया, व्हाट आई एम गेटिंग, इफ आई एम सेइंग मॉड पी के लिए 1 इंटू ए, राइट, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, अप टू p minus 1 into a, right? This number is congruent to 1 into 2 into 3 up to p minus 1 mod p. p minus 1 mod p. Is it okay? पूरा क्लियर कट हमने जो ऊपर काम किया है उसी को हमने यहाँ पर यूज करना चाहा है, एंड परफेक्टली आई एम यूजिंग दैट, राइट। So every 1, 2, 3 up to p minus 1 from both sides will be cancelled out. So how many times a will be there? So obviously a to the power p minus 1 congruent to 1 mod p, or I'm multiplying p both sides. So I'm getting a to the power p congruent to a mod p. This was the Fermat theorem जो हम लोगों को पहले प्रूव किया था। इसका एक नया प्रूफ मैंने आपको दिया। कैसा लगा ये बताओ। दिस इज परफेक्ट प्रूफ। थैंक यू, यस, वेरी गुड प्रूविंग। राइट, प्लीज नोट डाउन एवरीवन एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। इसको यूज भी करने हैं आगे। होप आगे तक नोट कर ही लिया होगा सभी ने। Yeah, so it depends. It depends, like how you are finding the things, right? But already you have done the question. इस पे काफी सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, if I'm not mistaken. I guess we can proceed. Okay. Yes. काफी अच्छा रहा, right? So now एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, then I have to proceed. मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए थे जिसके बारे में शायद आप लोगों ने आज डिस्कस नहीं किया। पहला काम होना था उसे ही आपको डिस्कस करना, बट इट्स ओके। मैं फिर से वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं दे ही दूँ। 1835 to the power 1910 plus 1986 to the power 2061 congruent to what for mod 7? मैंने यही क्वेश्चन दिया था शायद होमवर्क में, राइट। तो इट वाज 0 इफ मैंने दिया था इसे प्रूविंग के लिए, एंड ऑब्वियसली बात है, समझ गया होगा मैंने क्यों पूछा इसे। सो अगर सभी लोगों ने कर लिया है तो इट्स वेरी गुड।
Do it fast. Okay, let's proceed. Right? I guess इसमें तो दिक्कत नहीं होगी सभी को. मैंने obviously homework था तो I'm not taking this, right? But मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ. This फॉर्मा के थ्योरम जो हमारे पास है, a to the power p minus 1 is congruence to 1 mod p, and this is valid when we are saying कि p is prime. जो this is partially true बाद में और इसमें changes आए हैं, but यहाँ के लिए जो फॉर्मा ने बोला था उसकी बात चल रही है, right? And the GCD of a and p is 1. राइट, ये हमारे पास था. तो यहाँ से एक और बात आ रही है. इफ आई एम नॉट गेटिंग, राइट, इफ आई एम नॉट गेटिंग a to the power p minus 1 congruence to 1 for mod p, if I am not getting this, means p must not be prime, right? P must not be prime. Raj, raise your hand please. यस बेटा, नहीं समझ रहा क्या चाहिए बेटा? सर. अपने यहाँ पे मतलब क्या किया सर प्रोसीजर? आवाज थोड़ा सा जोर से बोलो. जय माता. यहाँ पे क्या किया सर? नहीं समझ रहा. कुछ भी किया ही नहीं. मैंने तो बोला ये होमवर्क दिया हुआ था आपको करने के लिए. मैंने तो कुछ नहीं किया यहाँ. मैंने तो बोला कि ये होमवर्क दिया हुआ था आप लोगों को करने के लिए, तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कैसे ट्राई किया इसे? सर एक्चुअली सर मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो कोई सर. बात नहीं बेटा, तो एक बार लास्ट लेक्चर अटेंड करके इसे देखना. वैसे ये वाला प्रूविंग समझ में आया ना, आज का जो प्रूविंग था? हाँ सर, आज का समझा. ठीक है बेटा, तो ये जो हमने बताया ना उसी पर बेस ये क्वेश्चन है. ठीक है ओके ना? तो एक बार उसे देख लेना. नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ओके हाँ सर. राइट. तो यहाँ से मैं ये बात बोल रहा था कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं आ पाती, a to the power p minus 1 congruence to 1 mod p, p is a prime number, राइट, इसके वाइस वर्सा भी जाना हमारे लिए आसान हो सकता है. राइट, अगर मैं बोलता हूँ कि लाइक नंबर इज गिवन एंड वहाँ पर मैं 5 to the power 38, राइट, mod 11, राइट, इसकी वैल्यू निकालना. 5 to the power 38 mod 11, इसकी वैल्यू जल्दी से सब लोग निकाल के बताओ तो क्या आ रहा है?
5 to the power 38 mod 11. वेरी गुड, वेरी गुड. काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बट सबके आंसर अभी तक डिफरेंट आए हैं. योजित, वेरी गुड. सुयस, वेरी गुड. Hitans, Kevin, Aditya, check your answer. Sujal, check your answer. Dhruv, very good. Adinath, very good. It's a direct question. Sanya, very good. Goodam, good. Aman Ranjan, very good. See, I have to apply the basic formula for this, and we know that what Thomas says, like 5 to the power p minus 1 congruence to 1 mod 11, right? मतलब एक रिजल्ट मेरे पास डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंचा 5 to the power 10, right? That must be 1 congruence to, right? And I have to reach to 38. So I'm saying 5 to the power 10 to the power 3 into 5 to the power 8, right? 5 to the power 8, I can write 5 square to the power 4, right? And this mod 11. And this number is 1 only, 1 to the power 3. 5 square is 25. 25, right, is 3 to the power 4 mod 11. And the last to say 3 to the power 4 is 9 minus 4. Minus 2 square is congruent to 4 mod 11. I guess it's coming as 4. Aparna, check your answer, please. Is it okay, everyone? Right? So this number, like how to go for this, right? अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा, you know this, but फिर भी एक concept के लिए मैं आपको दे रहा हूँ. Like if I'm saying कि 2 to the power 117, right? From this is congruent to 2 mod 117, right? This statement is true or not? 2 to the power 117 congruent to 2 mod 117 statement is true or not? Take your time. अब चेक करके बताएं पूरी तरह से, केवल 117 पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करके, यू हैव टू लाइक गो फॉर दैट. हाँ, आखिरी तक आंसर निकाले टू द पावर. यहाँ से कुछ कहानी और आएगी हितांश, इसलिए यू हैव टू चेक द नंबर, राइट? यहाँ से एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा थोड़ी देर में ही, दैट सूडो प्राइम, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला भी था. सूडो प्राइम ना, यहाँ जाके फर्मा का कुछ फेल हो गया, तो फेल हो गया तो उस समय भाई बड़े लोग, ये लोग बड़े लोगों की बड़ी बातें, उन्होंने बोला कि ओके 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 ये प्राइम नहीं है फिर भी ये वर्क कर रहा है. अच्छा ये वर्क कर रहा है, प्राइम नहीं है, तो इसको नाम दे दिया सूडो प्राइम. सूडो प्राइम, यू नो ना मीनिंग. सूडो का मतलब आप लोग समझते ही हो. इट्स नॉट रियल बट इट सीम्स टू बी, राइट? दैट्स नोन एज सूडो प्राइम, राइट? तो क्या ये पॉसिबल है कि दिस इज द सूडो प्राइम नंबर और नॉट, राइट? क्या ये भी उन नंबर्स में है जो फर्मा के थ्योरम को ओबे करता है बट ये प्राइम नहीं है, राइट? तो उस तरह के काफी सारे नंबर्स निकले. अपने रामानुजन का नंबर 1729 भी उसी नंबर में एक नंबर है. कौन कौन से नंबर और भी आते हैं वो बताऊंगा. एक्चुअल ये नंबर है या नहीं ये चेक करने मैंने आप लोगों को दिया है. टेक योर टाइम, मैक्सिमम 3 मिनट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Done, everyone? May I try? Do it fast, do it fast. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखते हैं, साथ में देखते हैं सब लोग, राइट। इट्स नॉट अ सिंपल वन, राइट। इस नंबर में इतना आसपास के नंबर वन आ जाते हैं या समथिंग, तो इट्स ऑलवेज सिंपल, बट इन दिस केस इट्स नॉट वेरी सिंपल। सो ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग दिस। एवरीवन केयरफुल। Look, we know that power of 2, so 2 to the power 7 is equal to 128, right? That's congruence to 11 mod 117. First, right? So 2 to the power 117 is congruence to, right? 2 to the power 7, right? And this is nothing but 2 to the power 7 is nothing but 11. Is congruence to 11 to the power 16 into 2 to the power 5 mod 117, right? Now 11 to the power 16 into 2 to the power 5 mod 117 is congruence to 121. This is nothing but 121 to square, and this 8, right? And 2 to the power 5.
Oh, obviously 117 is there, so 121 is nothing but 4 only, right? 4 means, right, 4 to the power 8 into 2 to the power 5 means 4 to the power 8 is 2 to the power 16, 21. Right, 2 to the power 21 is nothing but again 11. तो स्टेप में करता हूँ, right, this is 2 to the power 7 to the power 3, and 2 to the power 7 is, from this step we can say 2 to the power 7 is 11 to the power 3 mod 117, and 11 to the power 3 is 121 into 11 mod 117, and 121 is nothing but 4 into 44 mod 117. तो कहीं से भी आप जो बोल रहे थे, काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा था कि ये पूरा का पूरा नंबर मैच कर रहा है, इट्स नॉट मैचिंग, राइट, मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 117 इज कॉम्पोजिट. यस अमन. यस सर. सर अगर हम 4 to the power 8 को 16 to the power 4 लिखेंगे ना सर, 4 to the power 8 को 16 सर चलेगा. हाँ, तो सर वो 22 फिर बचता है सर. सर फिर उसका पावर 4 बच जाएगा. कितने किया तुमने, फिर 16 स्क्वायर लिया. हाँ सर, 256. 256. यस सर. कैलकुलेशन चेक करो, चेक योर कैलकुलेशन. या सर 2⁻13 लिया तो उसका मॉड 2 आ रहा है, फिर 2⁻13 को 9 से रेस कर दिया तो हो जाएगा. कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करें सभी लोग. ओके, यस सर. ओके, सर 22 आ रहा है ना सर. 44 है, 22, एक 2 भी पहले, ये 4 इंटू 11 हुआ ना 44. नहीं सर, मैं थोड़ा अलग किया था सर स्टेप से. अलग से भी बेटा वही आएगा, चेक कर लो एक कैलकुलेशन, या मेरे को भेजना, मैं देख लूँगा बाद में, ठीक है ना. तो ये यहाँ पर एक इससे मेरे को ये पता चला कि दिस इज नॉट वर्किंग ना, दिस इज नॉट वर्केबल, राइट. बट मैं आपको थोड़ी देर पहले यही चीज़ बता रहा था, राइट, कि अगर यहाँ पर ये काम को मैं छोटा सा एक दूसरे नंबर के साथ में करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा प्यारा सा नंबर है, इट्स अ वेरी नोन नंबर. 2 to the power 340 congruence to 1 mod 341, right. Prove this. मैं ही कर देता हूँ ना. अब ये हमारा नंबर एक बड़ा फर्मा थ्योरम यहाँ पर फॉल्स हो जाता है. तो इसी को हम लोगों ने नंबर, ये 341 इज द फर्स्ट नंबर जो सूडो प्राइम बोला गया, राइट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, ये 2 के पावर के साथ ही ये जो भी वर्किंग हो रही है वो 2 के पावर से. अभी और डिटेल में मैं चलता हूँ, बट 341 एक्चुअल में द नंबर 341 is 11 into 31, right. 11 into 31 वो उस तरीके से ये वर्क करता है, राइट. ये कंपोजिट नंबर है, राइट. अब ये कंपोजिट नंबर को वी नो दैट कि 2 to the power 11 is 2 into 2 to the power 10, एंड 2 to the power 10 जो है 2 to the power 5 31 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ,
So I can say this is equivalent to 2 into 1 is equal to 2 mod 31. Right? And 2 to the power 31 जो होता है, this is equal to 2 mod 11. Right? ये दो चीजें. हाँ, तो हुआ क्या, ये दो चीजों को यूज करने के लिए एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा एक लेमा दिया गया फर्मा के लिए. राइट? लेमा क्या था, उस लेमा को पहले मैं लिखता हूं, फिर उसे हम लोग डिस्कस करते हैं. लेमा, ब्यूटीफुल लेमा. दिस इज इफ P and Q are distinct prime with a to the power P congruence to a mod Q. ध्यान देना यहाँ पर नंबर Q है, and a to the power P congruence to a mod P. ये दो स्टेटमेंट हमने ब्लॉक कर दिए. Right? A to the power P congruence to a mod Q and a to the power P congruence to a mod P. Right? Mod P. Then a to the power PQ congruence to a mod PQ. बड़ा प्यारा सा एक रिजल्ट है. जल्दी से इसे आपको लिख लें, फिर मैं बताता हूं. If P and Q are distinct prime with a to the power P congruence to a mod Q, a to the power Q congruence to a mod P. ये दो अलग अलग थे. एक ये P से मैंने डिवाइड किया, तो ये mod Q से डिवाइड किया, तो ये फर्मा पे जा रहा था, एंड इसके लिए ये जा रहा था. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं ले रहा हूँ a to the power PQ, तो दिस वी आर गेटिंग एज a. अभी वो क्वेश्चन स्निग्धा अभी कंप्लीट होगा ना बेटा, इसीलिए तो लेमा बता रहा हूं. राइट? अब ये लेमा कैसे प्रूविंग होगा उसे देखते हैं. राइट? ये तो लेमा आई गेस नोट कर लिया सभी ने ना? ओके. आदित्य सिंह, P और Q अगर प्राइम है तो GCD तो PQ का 1 ही आएगा. P and Q were distinct prime, right? From last, like we know that from the theorems, right, a to the power P के लिए and a to the power Q के लिए, we know that if we have to work on this. So if I'm saying, right, ध्यान से समझना, it's a beautiful proving, right? Again, a to the power Q to the power P is congruence to a to the power Q mod P. I guess everyone is agree with this, because we know that formula by Fermat theorem, a to the power P congruence to a mod Q ना. यहाँ पर हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है a to the power P congruence to a mod P, right?
अगर मैं a टू द पावर p को a ले लिया होता इन दोनों पावर को इंटरचेंज करके, तो दिस इज कमिंग एज a टू द पावर q, राइट। उससे मैंने ये रिजल्ट बोल दिया। राइट, सो from this I'm getting this, right? And again I'm applying the congruence, तो a to the power pq तो हमारे पास है a to the power pq, जो इससे मेरे पास ये गिवन है। हाइपोथेसिस को मैं ट्रू अगर मान रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा कि a to the power q जो मेरे पास आ रहा है from this, right? अगर ये हाइपोथेसिस मेरी ट्रू है तो a to the power q is a to the power p is again a, तो a to the power q is given as congruence to a mod p, right? ये भी मेरे पास है। ये दोनों को अगर मैं मिला दूं, कंबाइन करा जाए, ये दोनों को कंबाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, a to the power p into q congruence to a mod p, राइट। ये पहले वाले को हमने यहाँ से देखा, p से डिवाइड कर रहा था, ये बचा, लेकिन मेरे क्वेश्चन में ही मतलब हमने हाइपोथेसिस को ट्रू माना। मैं बोल रहा हूँ ये भी a टू द पावर p हमारे पास a है, तो इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ a टू द पावर p q मेरे पास जो होगा उसमें a बचेगा फॉर मॉड p, राइट। नाउ अब अगर ये ट्रू मेरे पास आ रहा है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ p डिवाइड्स a टू द पावर p q माइनस a, राइट। इसका मतलब तो यही होता है ना, मॉड p पर a बच रहा है, मतलब a टू द पावर p माइनस q माइनस a is divisible by p, and in the similar manner we can say q divides a to the power p q minus a, राइट। q भी उसे डिवाइड कर रहा है, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं ट्रू मानते हुए बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि p एंड q दोनों प्राइम है, तो एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि p डिवाइड कर रहा है a टू द पावर p q माइनस a को, दूसरी तरफ q डिवाइड कर रहा है a टू द पावर p q माइनस a को, तो p इंटू q मस्ट डिवाइड a टू द पावर p q माइनस a, राइट। एंड ये तीसरे स्टेटमेंट से मैं बोल सकता हूं a टू द पावर p q कॉन्ग्रेंस टू a मॉड p q, राइट। इसको एक बार और देखना पड़ेगा, उसके पहले आप नोट करेंगे, फिर मैं एक बार इस प्रूविंग को एक बार और बताऊंगा आपको। पहले इस लेमा को एक बार आप प्रूव करें, फिर मैं बताता हूँ, राइट। 2 से 3 बार बताऊंगा जाके, देन यू विल गेट क्लोजर टू दिस कि कैसे ये पूरा हो रहा है। प्लीज नोट डाउन। ओके, चलो मैं दिखाता हूं फिर से एक बार, ध्यान से देखना। स्टार्ट विद द लेमा, व्हाट लेमा इज सेइंग, राइट। ध्यान से देखना, लेमा का मतलब होता है जो पहले की प्रूविंग है वहां से कुछ अंडरस्टैंडिंग हम निकाल सकें या कुछ और वर्किंग हम कर सकें, राइट। उसी में हमने ये लेमा कहाँ से बनाया, एक मिनट, इस लेमा के पहले का कहानी लिख दूं। ये लेमा हमारे बनने के लिए जो हमारे पास आया है, ये कहानी हमारे पास है a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड p से, राइट। यहाँ से ये लेमा हम लोगों को देखना है। इस लेमा में क्या बोला गया है पहले ये देख लें, राइट। ये पेरेंटल कंडीशन है जो ऊपर गिवन है। लेमा में बोला क्या गया, लेमा में बोला ये गया कि लेट इफ p and q are distinct primes with, दो कंडीशन मुझे दे दिया गया। क्या क्या कंडीशन, a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड q, राइट।
ये फर्स्ट ये दे दिया कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन व्हाट दे आर सेइंग कि a टू द पावर q कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड p, ये दोनों हमारे पास गिवन कंडीशन दे दिए गया कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, राइट? इफ दिस देयर इज समथिंग, राइट, देन दे आर सेइंग अगर ये दो चीजें मेरी प्रूविंग पे है, ये दो चीजें मेरे पास है पेरेंटल कंडीशन के साथ, then we can say a to the power pq is congruent to a mod pq, right? ये given है, ये proved है, right? और ये prove करना है, right? ये मेरे पास है, and it's given that p and q are distinct primes. Okay, everyone okay with this? आगे बढ़ रहा हूं अब ना, देखो कितने प्यार से आपको प्रूविंग है ना, क्वेश्चन के थ्रू भी दिखाऊंगा पहले इसे, राइट? ये मेरे पास गिवन रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट को मुझे यूज करने हैं यहाँ पर, राइट? ये दोनों रिजल्ट को इनफैक्ट ये दोनों के हेल्प से मुझे ये प्रूव करने हैं, राइट? So in the question it says that अगर मैं बोल रहा हूं कि a to the power q to the power p is congruent to a to the power q mod p, ये कैसे हो रहा है, राइट? इसके लिए मैंने क्या बोला कि a to the power q mod p को I can write a to the power p, right, is congruent to a mod p, and दोनों तरफ मैंने q का पावर दे दिया, right? तो same thing we are getting. Is it okay? Write down yes everyone if it's okay. Okay, now ये दो स्टेटमेंट से now I'm proceeding कि and ये गिवन है मेरे पास, सो यहाँ से मैं अब यहाँ पर आ रहा हूँ फिर से, बट a to the power q is given as a, ये अभी मेरे पास है, a to the power q is given as a for mod p. तो what I'm saying कि this statement only फिर से मैं रीराइट कर रहा हूँ, a to the power q to the power p congruent to a to the power q congruent to a mod p, right? Is it okay? ये फर्स्ट नाम दे दिया। मैं बोल रहा हूं इन द सेम मैनर a to the power q to the power p congruent to a to the power p congruent to a mod q, ये होगा, ये सेकंड होगा। Is it okay? Write down yes if everyone is getting this. ओके, नाउ अब ये दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे पास ट्रू होते जा रहे हैं तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, right? इसका मतलब हुआ a to the power pq congruent to a mod p, इसका मतलब हुआ a to the power pq minus a congruent to 0 mod p, और इसका मतलब हुआ कि p divides a to the power pq minus a, यहां तक प्लीज। a to the power pq minus a, right? And similarly I'm saying कि if this is true then 100% say that q must be a to the power pq minus a, right? अब ये दोनों मेरे जो हैं प्राइम्स हैं p and q, अगर p and q दोनों प्राइम्स है तो 1 प्राइम एंड 2 प्राइम अगर मैं लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं pq डिवाइड्स a to the power pq minus a, right? Is it okay everyone?
could you write yes if okay? ये you can Bhaumik, you can see the whole, the complete thing there, right? Note down please. Done everyone? थोड़ा फास्ट करो प्लीज. नाउ अब जब सूडो प्राइम की बात आई तो क्यों सूडो प्राइम वर्क कर गया, राइट? क्यों ऐसा सूडो प्राइम एक नंबर आ गया? हाँ, कोई जादू नहीं होता, उसके पीछे मैथमेटिक्स बहुत सारी होती है, राइट? तो उसी को प्रूविंग के लिए मैंने बोला पहले आपको नंबर दिखा दूं, नाउ उसकी प्रूविंग दिखाता हूं. तो एग्जैक्टली अब ये कैसे वर्क करना शुरू करेगा. सो व्हाट आई एम सेइंग कि एक अच्छा सा नया सा नंबर मिला सभी को, सब लोग बड़ा फैसिनेट रहे हमेशा 2 to the power n minus 2 congruence to 0 mod n के लिए, राइट? बहुत ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत लोगों को फैसिनेशन रहा कि कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ नंबर्स होंगे, राइट? किस तरह से वो नंबर्स मिल सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ आगे तक बढ़ी, राइट? तो उसके लिए एक नंबर जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि 2 to the power 340 congruence to 1 mod 341. अब 341 जो है, we know that 341 is nothing but 11 into 31, right? ये लेमा के हेल्प से हम लोग इसकी वर्किंग करने जा रहे हैं, right? And we know that 2 to the power 10 is equals to 1024, right? 1024 जो है वो नंबर बड़ा अच्छा सा नंबर है, वो है 31 into 33 plus 1. 1024 32 के आजू बाजू दोनों नंबर मैंने लिया, 32 + 1 32 - 1, राइट? तो 32 + 1 32 - 1 हो जाएगा, तो a + b a - b, तो a² - b². आई गेस व्हाट आई एम सेइंग ये सबको क्लियर होगा. मैं बोल रहा हूँ कि ये 32² जो नंबर आ रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअल में 32 - 1 32 + 1 कर दिया, तो 32 - 1 32 + 1 होगा, 32² - 1 और 1 + 1 है, तो इट ऑलवेज वर्क, ये काम कर जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों किया? अब ये होगा कि सर ये नंबर लिखने के फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा कि एक नंबर तो 31 मेरे को मिल गया जो पहले से 31 है ही, दूसरा नंबर भी जो मेरे पास आया, दिस ब्यूटीफुल नंबर 33, दैट्स मल्टीपल ऑफ 11, राइट? 11 का मल्टीपल भी आ रहा है, 31 का मल्टीपल भी आ रहा है, एंड उसके साथ में मेरे को जो रिमाइंडर बच रहा है दैट्स 1 ओनली, राइट? तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नंबर का बन रहा है,
सो वर्किंग हो सकता है हम लोगों को कुछ बहुत प्यारा चीज देखे जाए, राइट नाउ कैसे 2 to the power 31, राइट 2 to the power 31 मॉड 11 में निकाल रहा हूं तभी वो प्रूविंग हो सकती है। 2 to the power 31 11 से मैं अगर देखना चाह रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं 2 into 2 to the power 10 to the power 3 is congruent to 2 to the power 10, 11 से 1 ही जाएगा तो दिस इज ओनली 2 मॉड 11। सिमिलरली फर्स्ट इसको नाम दिया। सेकंड मैं देखता हूं यहां पर वर्किंग के लिए, राइट 2 to the power 11, right 2 into 2 to the power 10 1024 is congruent to 2 into 1 mod 31। ये भी क्लियर होगा क्योंकि 32 का स्क्वायर जा रहा है तो 1 1 वैसे भी 1 ही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये ना 32 2 to the power 5 is 32 तो 31 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दो बार बच रहा है तो 1 ही हो जाएगा। 2 into 1 विल बी 2 ओनली, राइट। तो अब मेरे पास एक अच्छा नंबर आया क्या 2 to the power p congruent to 2 mod q and 2 to the power q congruent to 2 mod p। अगर ऊपर वाले 1 and 2 को देख रहे हो आप तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है जहां पर p को मैं 31 बोल रहा हूं एंड q को मैं 11 बोल रहा हूं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन और इसको एंजॉय करें, कितना प्यारा नंबर आया है। ओके डन एवरीवन। अब ये दो थ्योरी से मेरे पास ये आ गया कि इन दोनों से मैं बोल सकता हूँ 2 to the power 11 into 31 congruent to 2 mod 11 into 31, राइट। ये 11 into 31 जो मेरे पास नंबर था राइट, इसी की वर्किंग चल रही है ना। जो आपको प्रूविंग करनी थी, जिस प्रूविंग की हम लोग बात कर रहे थे, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर गेटिंग 2 to the power 341, राइट। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं ना, जब वर्किंग किया गया तो पता चला कि इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं इस पर ये वर्क कर जाता है। बहुत सारे भी मैं बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ कि बहुत सारे हैं, बहुत कम नंबर हैं जो वर्क कर जाता है जैसे, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ से आपको मिल गया जो नंबर, उसमें नाउ वी कैन से 2 to the power n minus 2, राइट, कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड n की बात जब भी हो रही हो, राइट। तो n जो हमारे पास है, एक नंबर जैसे आपने लिखा 341, राइट। दूसरा नंबर इसका होता है 561, 645, याद नहीं है मेरे को, एक शायद 1105 और 729 और आगे भी है, बट ये कुछ नंबर्स हैं जो मेरे को ख्याल है जो मैं आपको दे रहा हूं। These are known as pseudo prime। जो सूडो प्राइम की बात हो रही है यहाँ पर, ये 2 के बेस में साथ साथ में चलते हैं। देवांश 2 to the power 117 is equal to 44, कॉन्ग्रुएंस टू 44 आया था बेटा, 2 तो आया ही नहीं था। That was not pseudo prime।
राइट। अब ये पूरी की पूरी जो बातें हुई फर्मा के बाद में, ये पूरी बात जो हो रही थी वो 2 टू द पावर n के साथ में हो रही थी। ध्यान से समझना, हाँ, ध्यान से समझना एक ये स्टेटमेंट को। बट इसके बाद जब वर्किंग को और आगे बढ़ाया गया तो देखा गया कि और भी नंबर हैं जो a टू द पावर n कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड n, राइट। a टू द पावर n कॉन्ग्रुएंस टू, ये केवल 2 के पहले अभी तक बात हो रही थी 2 के बारे में, लेकिन a के बाद a के साथ में भी ये वर्किंग शुरू हुई कि बहुत सारे ऐसा भी नंबर है जो हमेशा ट्रू होगा, केवल 2 के लिए नहीं, हमेशा ट्रू होगा ये चीज, ये नंबर के लिए। दिस इज नोन एज कार्मिशेल नंबर, राइट। मीन्स ए की जगह पर आप जो भी नंबर रख रहे हो उसके लिए वो ट्रू कहलाएगा, उसके लिए ये वर्केबल होगा। तो दिस इज नोन एज कार्मिकल नंबर, राइट। इसका जो फर्स्ट नंबर होता है जो n है, फर्स्ट n इज 561, the least number is 561, राइट। ये एक मैजिकल नंबर होता है एंड इसके साथ में और भी नंबर होते हैं, बट दिस इज द मैजिकल नंबर, राइट। 561 की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब 561 जो नंबर है आपके पास, दिस इज नंबर 3, 11 एंड 17 का मल्टीपल होता है। ये 3 के मल्टीपल होने के साथ में भी दिस वर्क फॉर ईच एंड एवरी नंबर, ए के साथ में हमेशा ये वर्क कर जाता है, राइट। नोट करके रखेंगे प्लीज। सूडो प्राइम अलग स्टेटमेंट एक होगा, कार्मिकल नंबर एक अलग स्टेटमेंट होगा। सूडो प्राइम की बात आप 2 टू द पावर n के लिए कर रहे हो, कार्मिकल के लिए आप बात कर रहे हो किसी भी a, राइट, किसी भी a के लिए वो काम करेगा। ध्यान नहीं दिए बात पर आपने, फिर से बात सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ 341, 561, 645 ये सब सभी के सभी नंबर वो हैं जो सूडो प्राइम है। सूडो प्राइम है मतलब 2 टू द पावर n कॉन्ग्रुएंस टू 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हर एक नंबर को करेंगे ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया था। बट उसी को जब आगे बढ़ाया गया तो देखा गया कि उसमें से वो नंबर जो 561 था, दैट्स द लीस्ट नंबर, ये ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं होते हुए भी a टू द पावर n कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड n को सपोर्ट करता है। फर्मा ने जो दिया था फॉर्मूला, उसने बोला था a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड p, p इज अ प्राइम नंबर। यहां पर जाके फर्मा का थ्योरम फेल हो गया, या फर्मा में एक्सटेंशन हो गया। वो एक्सटेंशन ये हुआ कि प्राइम के अलावे भी कुछ ऐसे नंबर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड जो उस पर वर्क कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया फिर सभी के लिए कि वाओ, इट वाज अ लाइक ग्रेट फाइंडिंग कि फर्मा ने इतना अच्छा दिया कि प्राइम के साथ में वो वर्क कर रहा था, लेकिन प्राइम के अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जिनके साथ में अगर ये वर्क कर रहा है, मतलब और भी आगे कहानी हो सकती है। जो आगे आइलर ने इसको जनरलाइज किया, आइलर के फॉर्मूले ने जनरलाइज किया, बताया कि ये केवल प्राइम के लिए नहीं दूसरे नंबर के लिए भी होगा, राइट। तो ये हम लोग लाइक 1700 के आसपास हम लोग घूम रहे हैं, 1700 के आसपास घूम रहे हैं, जहां पर हम लोग फर्मा के पहली चीजों को देखा, फर्मा के फिर फ्लॉज को हमने देखना शुरू किया ना। उसमें जब पहली बार फ्लॉज आया तो उसको सूडो प्राइम बोला, जब 2 के पावर में केवल लिया, फिर आगे जाके देखा तो और भी नंबर मुझे मिले, उसको आगे बढ़ाया, राइट। कैसे हो रहा है वो भी दिखाता हूँ, नोट कर लिया होगा सभी ने, ध्यान दें। मैंने यहाँ दिखाया आपको कि ये सूडो प्राइम नंबर हमारे पास है जिस पर हम लोग वर्क कर रहे थे 2 के लिए। अब 560 जो पावर है उसके लिए ये कैसे वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली हम लोगों को लेना ये है, यू नो दैट a टू द पावर 560 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 561, राइट। ये मेरे को प्रूव करना है। अब मैं इसको अलग अलग एक एक करके आता हूँ, राइट।
कि a to the power ये 561 नंबर is nothing but is 3 into 11 into 17। ये तीन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ नंबर है। ये तीनों को फर्मा के थ्योरम से अगर मैं वर्क करूं, राइट, विद द हेल्प ऑफ फर्मा के थ्योरम से मैं हेल्प ले रहा हूं, तो आई नो दैट a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 3 होगा फर्स्ट। सेकेंड, फॉर 11 a to the power 10 congruence to 1 mod 11 होगा। थर्ड, a to the power 16 congruence to 1 mod 17 होगा। ये तीन हमारे पास फर्मा के थ्योरम से हमने इन तीन चीजों को निकाल डाला, राइट। इफ जीसीडी ऑफ a and 561 is 1, ऑब्वियसली बात है जीसीडी 1 होना चाहिए, नहीं तो कंप्लीटली डिविजिबल ही नंबर जा रहा होगा, राइट। तब उन्होंने ये कहा कि जो भी नंबर आपके पास हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज के साथ में, विल ऑलवेज गेट दैट a to the power 560, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर to the power 280 congruence to 1 mod 3। Similarly a to the power 560 congruence to a to the power 10, सेकंड वाले को अप्लाई किया, और 156 congruence to 1 mod 11, सेकंड को अप्लाई किया। थर्ड में a to the power 560 congruence to a to the power 16, 16 5 जा 1 mod 17, राइट। तो तीनों में ही आपको दिख गया है ये 111 आ रहा है। तो ओवरऑल वी कैन से कि a to the power 560 तीनों को एक साथ में दिया, कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 561, राइट। नोट डाउन प्लीज। ओके, ठीक है, राइट। सूडो प्राइम, कॉमिकल नंबर, राइट, ये दोनों, एंड जो फर्मा का थ्योरम था वो, ये तीन चीजें आपके पास है, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई दिस। 1 to the power p minus 1, 2 to the power p minus 1 up to p minus 1 to the power p minus 1, right, is congruence to minus 1 mod p, एक ये प्रूफ करना है आपको। एंड द सेकंड इज 1 to the power p plus 2 to the power p up to p minus 1 to the power p congruence to 0 mod p। ये दो चीजें, डू इट फास्ट। अच्छा, कॉमिकल नंबर को कभी कभी एब्सोल्यूट सूडो प्राइम भी बोला जाता है, ये भी आप लिख के रखना। कॉमिकल नंबर को कभी कभी किसी बुक्स में आप देखोगे तो एब्सोल्यूट सूडो प्राइम के नाम से भी बोला जाता है। नाम है, जैसे भी लोगों को कंफर्टेबल रहा है लोगों ने किया है।
Very good, Aditya. Very good, everyone. Second done, first done. Very good. Done, everyone. बेसिक फॉर्मूला पर जाइए, फॉर्मा थ्योरम के बेसिक पर जाएं. सी, मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना. फर्स्ट वन, we know that by Fermat theorem a to the power p minus 1 congruence to 1 mod p, right? a to the power p minus 1 congruence to 1 mod p means फर्स्ट वाला जो नंबर है वो तो 1 है ही, सेकंड भी 1 होगा, थर्ड भी 1 होगा एंड लास्ट भी 1 होगा. तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर p minus 1, right? So this is congruence to p minus 1 mod p. p से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? तो दिस इज -1 mod p. बस, इट्स गिवन देयर. इज इट ओके? सेकंड वन ट्राई करेंगे सभी लोग. डू इट फास्ट. ट्राई करो, ट्राई करो. डू इट फास्ट. Very good. C. Very good. So first is 1. For the second question, we can say A
it will be equivalent to A up to P minus 1 times, right? We know that the sum will be P minus 1 into P by 2. Obviously, P minus 1, P is an odd number, so P minus 1 always divides this 2, right? But for mod P, I can say this number is completely divisible by P. So if this is divisible, so this is equivalent to 0 mod P. Is it okay? तो डायरेक्ट क्वेश्चन था. Next question. Prove that if P is an odd prime and K is an integer satisfying K lies between 1 to P minus 1, then the binomial coefficient P minus 1 CK, याद है ना, ये फॉर्मूला बताया था, must be equal to minus 1 to the power K mod P. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. सो टेक योर टाइम, ट्राई करें, देन आई विल डिस्कस. इसका फॉर्मूला याद है, मैं एक बार लिख दूं. P माइनस 1 CK का फॉर्मूला था, NCR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r. आज जो हम लोगों ने प्रूविंग की है वो शायद आपके लिए यूजफुल हो जाए. यू कैन अप्लाई दैट प्रूविंग. हाँ, टेक योर टाइम. ओके, डू वन थिंग, इसे आप लोग होमवर्क के लिए रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है. हाँ, इसे आप लोग होमवर्क के लिए रखना, बट याद करके नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर लेना, राइट. मैं यहाँ जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए वो प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, राइट. प्रूव दैट, एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ जो कंफ्यूजन था उसको खत्म करने के लिए. द स्मॉलेस्ट pseudo prime 341 is not Carmichael or absolute pseudo prime.
absolute pseudo prime by showing 11 to the power 341 is not congruent to 11 mod 341. Try this. You can apply the lemma also, right? So everyone take your time.
डन आया। मीरा रोड में डेस्कटॉप दे दिया है, तो उसका अनु सिंह का कल लैपटॉप ले लेना है और ये आ गया। मैं करूं? डन। वेरी गुड आदि, वेरी गुड। स्निग्धा वेरी गुड। सुजल वेरी गुड। अमन वेरी गुड। जो थ्योरम अभी देखा था a टू द पावर p और q, जो हम लोगों ने एक यूज किया ना, उसको ट्राई करो ना अप्लाई करने का। वी नो दैट ये जो हमारे पास है 341 इज नथिंग बट दिस इज 11 into 31, राइट। मैं कोशिश क्या करूं कि 11 to the power 11 इज कॉन्ग्रेंस टू, राइट, कितना कॉन्ग्रेंस टू आ रहा है वो निकालूं फॉर मॉड 31, and similarly, right, 11 to the power 31 congruence to कितना आ रहा है mod 11, ये निकालूं। बट वी नो दैट कि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होके 0 ही दे देगा, नहीं? राइट, मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये वर्केबल नहीं है, राइट, ये वर्केबल नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट अ सुडो प्राइम। लेकिन दिस इज एब्सोल्यूट सुडो प्राइम नहीं है, बट सुडो प्राइम तो हमारे पास है क्योंकि 2 के पावर के 2 के बेस में दिस वाज वर्किंग, राइट। हाँ, तो आप लोगों को मैं कुछ वर्क दे दे रहा हूं। 2 to the power 561 minus 2 is divisible by 561, right? 3 to the power 561 minus 3 is divisible by 561, ये दो, राइट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विल्सन थ्योरम, राइट। आज के लिए मैं आप लोगों को as I promised